Assalamu alaikum everyone, my name is Mohammad Dabar Zahid and welcome to the second part of Biological Molecules Rapid Review Series. ठीक है, I'm so sorry I was trying to do it in one video, लेकिन it got too long and it would have been a hassle to edit and upload, so I decided, and also for you to watch, so I decided to break it down into two portions. ठीक है, अच्छा, so previous video के अंदर हम लोग we just had talked about saturated and unsaturated fatty acids. Now I want you guys to अब थोड़ा सा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें जो आपने मेमोराइज करनी है. दीज आर गोइंग टू बी योर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स दैट यू हैव टू मेमोराइज and these are going to be unsaturated fatty acids that you have to memorize. And guys, एक छोटी सी मैं आपको वैसे जनरल चीज़ बता दूँ. We go with the convention in your अभी वाले exams. Saturated fats are unhealthy, unsaturated fats are healthy, ठीक है? But in real life, it is much more complicated. It's not that simple. You need a balance of both saturated and unsaturated fats, okay? Just wanted to put that out there because again, I want you guys to actually learn things, ठीक है? तो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली, लेकिन असल में भी आप लोगों को चीज़ें आती जाए. अच्छा, मैंने कैसे याद किया था रिलीज टू पर, लेकिन आज मेमोराइज इट एज LMPS, ठीक है? और नीचे वाले इज गोइंग टू बी लोला, okay? So please make sure you memorize these 8 ones at least. There are even more in your books, but these are in my opinion the most important ones. And guys, the number of carbon atoms in a fatty acid chain are always going to be even, okay? So if there's a question and they're asking you, okay, how many number of carbon atoms does, let's say, lauric acid have, so please make sure to eliminate all the odd numbers. All right, okay guys, a quick question from you all now, ठीक है? Let's say कि this is a glycerol molecule और यहाँ पे हमारे पास attached है, let's say we have our oleic acid over here. Let's say over here we have our myristic acid attached, and over here let's say we have our arachidonic acid attached. All right, and if I ask you what is the total number, first of all, if I ask you which acyl glycerol is this, so guys, this is a triacyl glycerol. If I ask you, is this neutral, is this acidic, is it basic, so it is going to be a neutral one, as all the OHs have been neutralized. All right, and इसके साथ साथ if I ask you the total number of carbon atoms, so this is going to be having the oleic acid is going to be having 18 carbon atoms, myristic acid is going to be having 14 carbon atoms, and arachidonic acid is going to be having 20 carbon atoms. All right, and you can add all of these and you can answer your question. So please make sure you know this, ठीक है? इस तरह से आपको याद हो, सवाल इस तरह बन के आ सकते हैं, ठीक है? Okay, just give me 1 second. Let's just move it a bit over here. And now guys, we did with fatty acids, unsaturated fatty acids भी हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है? Now I want to move on to waxes, okay? Waxes, ये हम लोगों ने A levels में इतनी सही तरीके से नहीं पढ़ा होता. I'll just quickly go over these and I would suggest especially for the A level students कि प्लीज़ इसको या तो अपनी बुक से या तो जो मैंने वीडियो अपलोड की उससे प्रॉपरली पढ़ लो प्लीज़, ठीक है? अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि दीज आर वेरी नॉन पोलर, बहुत नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, ठीक है? और इसके साथ साथ दे आर वेरी हाइड्रोफोबिक, ठीक है? यू कैन टेक अ पीस ऑफ वैक्स, उस पर थोड़ा सा पानी डाल के देखो, वेरी हाइड्रोफोबिक. ऑलराइट, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ये व्हाट आर दे एक्चुअली? दीज आर एसेंशियली एस्टर्स ऑफ वेरी, मैं बताता हूँ, एस्टर्स हैं ये, लेकिन किस चीज़ के एस्टर्स हैं? एस्टर्स दो चीज़ों से बन के मिलते हैं, राइट? सो नंबर वन, द फैटी एसिड्स आर गोइंग टू बी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, और उसके साथ साथ जो हमारा अल्कोहल होता है दैट्स ऑल्सो लॉन्ग चेन अल्कोहल. इट्स नॉट ग्लिसरॉल, इट्स अ लॉन्ग चेन अल्कोहल. ओके, सो इट्स ओवरऑल इट्स अ वेरी बिग मॉलिक्यूल, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर जो आप लोगों को कुछ चीज़ें याद करने की ज़रूरत है वो ये हैं कि स्पेसिफिकली जस्ट प्लीज़ रिमेंबर दैट बी वैक्स जो होती है वो हनीकूम्स में यूज़ हो रही होती है, ठीक है? सो ऑल द वैक्स इन हनीकूम्स वी जस्ट से इट्स बी वैक्स, ठीक है? इसके साथ साथ जो हमारी शीप वूल होती है, ठीक है, दैट इज़ स्पेसिफिकली लिनोलिन, ठीक है? इट्स यूज्ड अ लॉट इन आवर टेक्सटाइल्स, शीप वूल, ओके. और उसके साथ साथ क्यूटिन होती है. क्यूटिन एज यू गाइस नो इज गोइंग टू बी एट द लीफ सर्फेसेस एंड इट इज़ व्हाट मेक्स द लीफ सर्फेसेस, मेक्स द लीफ नॉन परमिएबल to the escape of water, to the escape of transpiration through to the process of transpiration through the upper surfaces, ठीक है? तो अगर ये मेरा लीफ है, लेट्स से ये लीफ का upper epidermis है, ये लीफ का lower epidermis है, तो इसके ऊपर I'm going to be having a thin transparent sheet of cutin which essentially which does not allow water to escape
over here, और वो यहाँ से escape कर सकता है through you know guard cells जो इस तरह करके बैठे हुए होते हैं, ठीक है. तो it's used to control the outflow of water, ठीक है. ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Alright, so we've talked about this, and then lastly we have suburin. Suburin, as all of you guys know, ये हमारे जो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवेज होते हैं इन द रूट हेयर्स, ठीक है. ये वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था, स्पेसिफिकली मेकिंग द कैस्परिन स्ट्रिप, ठीक है. कैस्परिन स्ट्रिप. ऑलराइट गाइस, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट देम. अच्छा, अब ना एक छोटी सी बात आप प्लीज़ याद रखिएगा कि जो वैक्सेस होते हैं ना, दे आर गोइंग टू बी रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ठीक है. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट, ठीक है. एंड दिस इज व्हाट अलाउज देम टू बी वेरी इनर्ट. ओके, सो अ लॉट ऑफ इवन जो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक डायनासोर्स के रेमिनेंट्स मौजूद हैं, वो भी दे वर एसेंशियली सेव्ड इन सर्टन फॉर्म ऑफ वैक्सेस के सर्टन, दे वर सबमर्ज्ड इन सर्टन फॉर्म्स ऑफ वैक्सेस, जिनकी वजह से दे वर एबल टू रेजिस्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन एंड यू नो एटमॉस्फेरिक डिग्रेडेशन, एंड दे आर स्टिल प्रेजेंट. ऑलराइट, सो हम लोगों ने बात कर ली. इसके साथ साथ गाइस थोड़ा सा मैं जल्दी से बताता हूँ. सिंथेटिक वैक्सेस होती हैं जो कि पेट्रोलियम या पॉलीइथाइलिन से हम लोग बना लेते हैं. लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो अल्कोहल्स लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स के उसमें मिक्सचर्स होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. खैर, इफ यू वांट टू डू इट इन मोर डिटेल, यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो, एंड आई पर्सनली वांट टू मूव ऑन टू फॉस्फोलिपिड्स. ओके, सो गाइस, फॉस्फोलिपिड्स इज अ बिग चंक. फॉस्फोलिपिड्स, अच्छा, फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि फॉस्फोलिपिड सबसे जो इनका इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड गाइस, फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है, नाउ ट्राई एंड लुक एट दिस, ठीक है. सो वी हैव फॉस्फेटिडिक एसिड, एंड फॉस्फेटिडिक एसिड एसेंशियली जाके ना, इट कैन कंबाइन विद आइदर ऑफ फोर थिंग्स, ठीक है. अच्छा, वो क्या क्या चीज़ें, उनको मैंने एक न्यूमोनिक से याद किया है, CIES, ठीक है. सो देयर इज़ गोइंग टू बी कोलिन, देयर इज़ गोइंग टू बी इनोसी, जस्ट अ सेकंड, लेट मी टर्न माय नोट्स, मैं स्पेलिंग्स भी सही देखता जाऊँ. अच्छा, सो देयर इज़ गोइंग टू बी नो गाइस, सो इनोसेटॉल, E for ethanolamine, and then lastly we are left with S, which is going to be serine. Okay guys, and one more thing that I want you to know is that choline is a nitrogenous base, inositol is going to be an amino alcohol, and ethanolamine, as you guys know, is also literally naam mein likha hua hai, ethanolamine, it's also an amino alcohol. And then we have serine, which is going to be an amino acid, ठीक है, amino acid. ओके गाइस, तो ये हमारे पास पूरा एक चीज़ बन गई है, ठीक है. तो फॉस्फेटिडिक एसिड इज गोइंग टू बी कंबाइनिंग विद आइदर फोर ऑफ दीज थिंग्स. अच्छा, अभी भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, लेट्स गो इनटू अ बिट मोर डिटेल कि फॉस्फेटिडिक एसिड बना हुआ किस तरह से होता है. अच्छा गाइस, अब मेरी बात सुनो. दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट सिमिलर टू अ डाइग्लिसराइड. तो देयर इज अ क्वेश्चन कि डाइग्लिसराइड और फॉस्फेटिडिक एसिड, आर दे सिमिलर, आर दे डिफरेंट? तो दे आर क्वाइट सिमिलर. ऑलराइट, अब मेरी बात सुनो. बेसिकली हमारे पास ना एक होता है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल. मैं से विजुलाइज नहीं कर रहा बिकॉज दैट विल कॉम्प्लिकेट थिंग्स अ बिट मोर फॉर यू. सो देयर इज वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, then there's going to be, this is going to be 1, then there's going to be fatty acids, ठीक है. fatty acids दो chains attached होंगी, 2, ठीक है. and then there is going to be a phosphate group, ठीक है, एक phosphate group. ये कितने हैं? ये एक phosphate group है. and guys, ये जो हम लोगों ने ग्रुप्स की बात की है, इन चारों ग्रुप्स की जो मैंने बात की है, ठीक है, all of these 4 groups, इनमें से 1, so like let's say we have phosphatidylcholine. so phosphatidylcholine में क्या है कि ये पूरा ये स्ट्रक्चर कॉमन है, and then we have choline being attached to the phosphate group. The phosphate group is the point of attachment of either of these 4 groups. alright guys, ये हमारे पास सारा कुछ आ गया, ठीक है. अब मैंने आप लोगों से थोड़ी सी और बात करनी है, एंड देन वी आर डन विद फॉस्फोलिपिड्स एज वेल. सो गाइस, फॉस्फोलिपिड्स में एक जो छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दे लव टू आस्क यू इन योर MDCAT, दैट इज़ कि हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट यू नो फॉर अस फॉस्फोलिपिड इज, इट्स गोइंग टू बी, जो मैंने भी मेंशन किया, फॉस्फेटिडाइलकोलाइन. सो गाइस, इफ़ आई आस्क यू, एक साथ ही लिखते हैं इसको हम, फॉस्फेटिडाइलकोलाइन.
इफ़ आई आस्क यू गाइस कि ये किस किस चीज़ों से बना हुआ है, इट्स बीइंग मेड ऑफ 1 ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स, 1 फॉस्फेट ग्रुप विच इज़ बाउंड टू अ कोलिन थिंग. कोलिन क्या होता है? इट्स अ नाइट्रोजनस बेस. ऑलराइट, सो फॉस्फेटिडाइलकोलाइन आता है हमारे पास, ठीक है. अच्छा, इसको गाइस हम लोग लिसिथीन का नाम भी देते हैं, ठीक है. ये हमारे पास आ गया, एंड दिस इज गोइंग टू बी मेकिंग योर सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज एसेंशियली, एक इसका एंड हाइड्रोफोबिक होता है, एक ये हमारा हाइड्रोफिलिक होता है. तो हाइड्रोफोबिक प्लस हाइड्रोफिलिक, और वो जो ज़्यादा स्ट्रक्चर है हाइड्रोफिलिक, आई वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग इट इन दिस वीडियो, बट आई डिसाइडेड कि वो मैं सेल मेम्ब्रेन वाली वीडियो में कर दूंगा कि वो बाइलेयर की क्या सारी एग्जैक्ट अरेंजमेंट होती है. राइट, सो गाइस वी टॉक्ड अबाउट दिस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टर्पीन्स. ठीक है, लेट्स डू टर्पीन्स ओवर हियर. टर्पीन्स हमारे पास, दे आर फॉर्म ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स. ठीक है, टर्पीन्स आर डिराइव्ड लिपिड्स. और टर्पीन्स का क्या ये होते हैं कि ये हमारे पास ना, दे आर गोइंग टू बी मेड फ्रॉम दिस 5 कार्बन थिंग विच इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड, एक बेसिक यूनिट है जिसे हम लोग कहते हैं आइसोप्रीन यूनिट. ठीक है, सो दिस 5 कार्बन यूनिट कॉल्ड एन आइसोप्रीन यूनिट. ठीक है, एंड एसेंशियली इसकी ना डिफरेंट कंडेंसेशंस होती हैं. कंडेंसेस इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. कंडेंसेस इन डिफरेंट वेज, ठीक है, टू फॉर्म डिफरेंट specific molecules. All right, different compounds. Okay, तो I'll be discussing the most important ones. ठीक है, हमारे पास होते हैं सबसे पहले, so we have 4. ठीक है, there's monoterpenes, there's going to be diterpenes, there's going to be triterpenes, and then there's going to be polyterpenes. ठीक है, अच्छा, मोनो के अंदर ना हमारे पास 2 isoprene units आ रहे होते हैं. मोनो does not mean 1 isoprene unit, it means 2 isoprene units. Di means 4 isoprene units, and tri means 6 isoprene units. ठीक है, and polyterpenes mean n, मतलब जितना ज़्यादा 6 से ज़्यादा. अच्छा यार, अब प्लीज़ इसको एक चीज़ अंडरस्टैंड करो. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास ना 2 मोनोटर्पीन्स के अंदर, लुक, 1 टर्पीन, 2nd टर्पीन. ठीक है, डाई के अंदर 1 टर्पीन, 2 टर्पीन, 3 terpenes, and 4 terpenes, and then eventually 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसमें क्या है? It is as long as we want it to be. ठीक है guys. अच्छा, okay guys, so terpenes के अंदर I'll just quickly list down a few examples. You should, आपको बस याद आ जाने चाहिए. लेकिन हमारे पास मोनोटर्पीन्स में we have menthol. ठीक है, for monoterpenes and for menthol. डायटर्पीन्स के में हमारे पास विटामिन ए होता है, एंड फाइटॉल. फाइटॉल स्पेसिफिकली इज अ क्लोरोफिल टेल. ठीक है, ट्राइटर्पीन में हमारे पास आ जाते हैं एम्ब्रीन. ठीक है, और पोलीटर्पीन के अंदर हमारे पास आ जाता है नेचुरल रबर. ठीक है, तो ये गाइस प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, और इसको अगेन अंडरस्टैंड इतना आप नहीं भी कर सकते, आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें. ऑलराइट, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टीरॉइड्स. ठीक है, स्टीरॉइड्स में हमारे पास क्या हो रहा होता है? वी हैव स्टीरॉइड्स एंड देन वी हैव प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ओके, स्टीरॉइड्स. Okay, so what is happening in steroids? So guys, steroids are going to be lipids of high molecular mass which can in certain condition be crystalline. High molecular mass and can be crystalline. Okay, ये हमारे पास ना 17 कार्बन एटम्स होते हैं. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 4 अटैच्ड रिंग्स होती हैं बेसिकली, और उन रिंग्स के अंदर ना वी हैव 3 rings that are 6 carbon, and then we have 1 ring that is going to be 5 carbon. Because they are attached, the total number यहाँ पे तो आप जब से ऐड करोगे it would be coming more than 17, लेकिन because they are attached, so some are repeated. मतलब एक जैसे let's say ये देख लो, ऐसे करके दिखाता हूँ, यूँ. अब this individually has 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, बट टोटल स्ट्रक्चर, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ यूल बी लाइक ओ इसके 5 हैं, इसके 5 हैं, बट ओवरऑल कितने इनमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ठीक है, this is what it means. You don't need to go into the structure in more detail, but if you're confused कि जी 3 rings at 6 carbon means 18, 1 ring at 5 carbon means 18 plus 5 23, but यहाँ पे तो आपने 17 carbon atoms दिखा हुआ है. Guys, ये ऐसा structure होता है, it's an attached ring, तो some are overlapped, okay, some are overlapped. In case you're confused, ये मैंने इसलिए आपको चीज़ clear कर दी है, ठीक है. अच्छा, these are also made of isoprenes, ठीक है, जिनसे terpenes भी बने होते हैं. अच्छा, और यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि हमारे पास ये देखो 17 कार्बन एटम्स वाली पूरा एक मेन स्ट्रक्चर बन गया है. द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नाउ इज कि वी आर गोइंग टू बी हैविंग साइड चेन, वी आर गोइंग टू बी हैविंग दीज साइड चेन्स, और इन साइड चेन्स की जो लेंथ और स्ट्रक्चर होता है ना, द स्ट्रक्चर एंड द लेंथ ऑफ दीज साइड चेन्स, this is what differentiates, for example let's say estrogen from testosterone, ठीक है. अच्छा, ये हम लोगों ने बात क्लियर कर दी, ठीक है. दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग. तो इफ दे आस्क यू कि एक दो स्टीरॉइड्स का आपको नाम देंगे, इनके बीच में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, इज इट अ डिफरेंट मोनोमर बीइंग यूज्ड, व्हाट इज हैपनिंग, द मोनोमर इज सेम, इट्स आइसोप्रीन, ठीक है. एंड वेरिएंट फैक्टर क्या आ रहे हैं, स्ट्रक्चर और लेंथ है, जिसकी बेसिस पे वो वेरी हो रहे हैं. ओके गाइस, हम लोगों ने ये भी कर लिया. अच्छा, अब इसके बाद वन थिंग दैट आई वांट यू टू नो इज कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये भी एक स्टीरॉइड होता है, एंड दिस इज अ प्रीकर्सर स्टीरॉइड. इट्स गोइंग टू बी गोइंग ऑन एंड इट इज़ गोइंग टू बी मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टीरॉइड्स, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई वांट यू टू नो. और हमारे पास ओके, सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर स्टीरॉइड्स. एक रैपिड रिव्यू के हिसाब से इतना काफ़ी है. अब हम बात करते हैं अपने पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स की. लेट्स डू प्रोस्टाग्लैंडिन्स ओवर हियर. प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पी फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पी फॉर पेन, ठीक है. इनके काफ़ी ज़्यादा रोल्स होते हैं, ठीक है. दे आर गोइंग टू बी एक्टिंग एज वेजोडाइलेटर्स, ठीक है, इन सर्टन कंडीशंस, और ओवरऑल डूइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. लेकिन हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर दे आर गोइंग टू बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन. बट वंस यू कम इन टू मेडिकल स्कूल यू विल लर्न के प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इनको ब्लॉक कैसे करते हैं, इन सर्टन केसेस इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे करते हैं, दैट एसेंशियली फॉर्म्स अ बिग चंक ऑफ फार्माकोलॉजी. एनीवेज, चलो, दीज आर लोकल हार्मोन्स स्पेसिफिकली इन मेमेलियन टिश्यूज, ठीक है. मतलब ये आप किसी एम्फीबियन के पास जाओगे, दे वोंट हैव इट. ओके, सो these are going to be derived from arachidonic acid जो कि C20 से बना हुआ होता है, like it's C20 इसकी वो है. Okay, so the roles are going to be control of blood pressure, the modulation of pain which is very important. इसके साथ साथ fever, so PGGE2 करवाता है, ठीक है, inflammation, ठीक है, and a couple of more things. Okay, so ये हमारे पास चीज़ें आ गई. and इसके साथ साथ चलो एक और मैं important चीज़ रख देता हूँ कि this has a role in क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है. ओके, एंड ये जो फीवर की बात की है ना हमने, ये तब होता है व्हेन वी एसेंशियली हैव इट हैपनिंग इन द हाइपोथैलेमस, के हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स हाइपोथैलेमस के अंदर जा रहे हैं या वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है. ओके गाइस, अब एक हमने चीज़ करनी है डिस्कस विच इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन इटसेल्फ, लाइक इट्स नॉट समथिंग दैट योर बॉडी मेक्स, दैट इज एस्पिरिन, ठीक है. सो गाइस, एस्पिरिन is something that essentially inhibits, it knocks out the synthesis of prostaglandin, inhibits prostaglandin synthesis, and guys, in doing so it is basically going to be acting as one, an analgesic, which means कि ये pain को reduce करता है. Two, it is going to be acting as an antipyretic, which means कि बुखार को कम करता है. पायरेसिस या पायरेटिक का मतलब है कि बुखार, ठीक है. एंड तीसरी चीज़ ये कि इट्स गोइंग टू बी एन एंटी इन्फ्लेमेटरी बिकॉज इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, ठीक है. तो अगर किसी को बुखार है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, ठीक है, तकलीफ हो रही है, तो वी गिव देम एस्पिरिन. ओके, सो हम लोगों ने ये बात कर ली. एंड स्पेसिफिकली दे वांट यू टू नो समथिंग कि द एंजाइम दैट इट इज गोइंग टू बी इनहिबिटिंग एंड ओवरऑल वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज सैलिसाइलेट होकर होता है. प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज सैलिसाइलेट. ओके गाइस, ये हम लोगों ने बात कर ली. अच्छा, और स्पेसिफिक पाथवे भी चलो लिख देता हूँ मैं, दैट इज द लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे. ओके, just if you guys want to know a bit more detail. Okay, so this is what we have. We've done this. Now let's move on to another thing.
ऑलराइट गाइस, लेट्स टॉक अबाउट सम प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीन्स मैंने अपनी वीडियोस में इतनी डिटेल में नहीं कवर किया हुआ, बिकॉज इन ऑल ऑनेस्टी ये जो आप लोगों ने अपने एफएससी और ए लेवल्स में पढ़ा होता है ये उतनी ही डिटेल में प्रेजेंट होता है. देयर इज़ नथिंग बिग, देयर इज़ नथिंग स्केरी इन इट दैट यू नो यू हैव टू बी कि ये कहाँ से क्या चीज़ आ गई. ठीक है, अच्छा, लेकिन स्टिल आई वांट टू डू इट इन थोड़ी सी और डिटेल ओवर हियर, बिकॉज दिस इज अ रिविजन वीडियो. आई वांट टू मेक श्योर आप लोगों को चीज़ें भूली भी ना हो. सो अमाइनो एसिड्स आर गोइंग टू बी द मोनोमर्स. ठीक है, अमाइनो एसिड्स. And guys, amino acids के अंदर ना amino acid, there's an amine group and there's an acid group. ठीक है, so there's the central carbon. Alright guys, so essentially we are going to be having a central carbon. Central carbon के साथ एक हमारे पास carboxylic acid group attached होता है, एक हमारे पास R group होता है which is variable. ठीक है, और एक हमारे पास hydrogen होती है, and then we're going to be have an amino group which is NH2. This is not H2N, बल्कि चलो मैं इतना वो नहीं करता, NH2. ठीक है, ओके गाइस, सो हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट आइडेंटिटीज़ होती हैं, दे आर बेस्ड ऑन द आर ग्रुप. तो आर ग्रुप पे अगर लेट्स से हाइड्रोजन लगाओ, इट्स गोइंग टू बी ग्लाइसिन, जो भी चीज़ लगी हो इट्स गोइंग टू बी वेरिंग लाइक दिस. ठीक है, सम पीपल मेमोराइज के अच्छा कि कौन सा आर ग्रुप लगा हुआ हो अमाइनो एसिड्स को, यू नो, याद करते हैं. आई डिडंट डू इट एंड आई वुडंट सजेस्ट यू टू डू इट. ठीक है, इट्स नॉट वेरी हाई यील्ड एंड इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, जस्ट नो द बेसिक्स. ठीक है, विच इज़ के एच लगाओ तो ग्लाइसिन होता है. ठीक है, सो ये हम लोगों ने बात कर ली. एंड एसेंशियली हमारे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा विच इज़ गोइंग टू बी बिटवीन दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट आई वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट इज गोइंग टू बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर. द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज एसेंशियली गोइंग टू बी द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, the sequence of amino acids. ठीक है, okay guys, because one thing that I want to talk about is that proteins are referred to, most proteins are referred to as heteropolymers. हेट्रोपॉलीमर्स का ये मतलब है कि जो इनका मोनोमर है ना, दे हैव डिफरेंट मोनोमर्स, मतलब मोनोमर्स चेंज हो रहे होते हैं. इसका क्या मतलब है, लेट्स से जी पहले ये अटैच हुआ है, उसके बाद लेट्स से वी हैव, एक सेकंड इसको एक दफ़ा में बनाते हैं, ये है, फिर ये है अटैच्ड, देन लेट्स से देयर इज दिस, देन लेट्स से दिस इज कमिंग बैक, देन लेट्स से दिस द रेड वन, दिस इज डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. ठीक है, और बीच में हमारे पास अपना एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ है. ठीक है, सो you see there's different monomers. Homopolymer क्या होता है कि let's say it's all of these are red, so then in that case it is going to be a homopolymer. All right, we've talked about that proteins are called heteropolymers. ठीक है, primary structure जो होता है, this is the sequence of amino acids. ठीक है, pretty simple, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, इसमें कोई चीज़ complicated नहीं है. ठीक है, अच्छा, इसके बाद गाइज वी गोइंग टू बी हैविंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ना हमारे पास एसेंशियली इफ दे वर आस्क यू कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या चीज़ बना रही होती है, तो यू शुड बी अवेयर दैट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी मेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे पास अराइज कर रहे होते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी क्रिएटिंग. ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेंज पूरी बन गई है, अब उसके साथ साथ हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ रहे हैं एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं हमारे पास, दे आर क्रिएटिंग अल्फा हीलिक्स स्ट्रक्चर और इट्स क्रिएटिंग अ बी प्लीटेड शीट या बीटा प्लीटेड शीट. ठीक है, तो ये दो डिफरेंट हमारे पास वो तरीके आते जा रहे हैं जिसमें ये अब हमारे पास पूरा बनता जा रहा है. ठीक है गाइज, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टर्शियरी स्ट्रक्चर. ओके, सो अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द 3-dimensional स्ट्रक्चर. ठीक है, द 3-dimensional स्ट्रक्चर दैट वी हैव एंड दिस इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन द आर ग्रुप. ठीक है, इसमें हमारा किसी और चीज़ का लेना देना नहीं होता. एंड यू गाइज नीड टू रिमेंबर कि ये कौन सी इंट्रैक्शंस होती हैं. देयर कैन बी सॉल्ट बॉन्ड्स, सॉरी, सॉल्ट बॉन्ड्स के साथ साथ वी कैन हैव डाइसल्फाइड ब्रिजेस. ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस. अलॉन्ग विद दैट वी कैन हैव हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शंस. ठीक है, जिन्हें मैं कहता हूँ वाटर बेस्ड रिएक्शंस. Sorry guys, I've just been recording so many videos, गला सूख रहा है मेरा. And then there is hydrogen bonding. ठीक है, straight up again hydrogen bonding अब R groups के दरमियान भी हो सकती है. ठीक है, so guys this is what we have. All right, so we've talked about this. अच्छा, अब हमारे पास ना, if I show you guys, this is going to be a primary structure. Now it's arranged in this coil-shaped structure. This is the alpha helix. This is the secondary structure. And now this is a tertiary structure. तो quaternary structure क्या होता है? The fourth structure, the quaternary structure, is basically the interaction of
2 to n number of chains कि ये एक चेन थी। अब हमारे पास, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हमारे पास लेट्स से वी हैव another chain, let's make it orange ताकि you guys know it's different, and then let's make another chain, let's give it, okay I give it the same color, sorry, let's give it something that you can also see, let's give it this color. So now you guys see अब ये 3 chains आ गई। अब इनकी जो आपस में interactions होंगी in 3-dimensional space, this is going to be forming the quaternary structure, ठीक है। तो this is what we have, ओके ये हम लोगों ने सारी बातें कर ली। अब गाइज इसके बाद हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। आई वॉन्ट बी गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल फॉर दिस, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा लेके जाऊँगा इन डिटेल वंस वी आर डूइंग डिफरेंट, जब हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स में चीज़ों को डिस्कस करेंगे तब मैं थोड़ी सी डिटेल में इसको ले जाऊँगा, लेकिन फॉर नाउ आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट। देयर इज जस्ट सम मेमोराइजेशन थिंग्स दैट आई वुड वांट यू गाइस टू रिमेंबर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास अल्फा अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड होती है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी हैविंग, ये हम स्पेसिफिकली हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन इज गोइंग टू बी हैविंग एन अल्फा चेन एंड बीटा चेन, ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 141 अमाइनो एसिड्स आते हैं, अमाइनो एसिड्स, and if we have the beta amino acid polypeptide, so this is going to be having amino acid polypeptide, this one is going to be having 146 amino acids, ठीक है। तो this is important for you to know। इसके साथ साथ हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं, they are responsible for essentially organizing DNA into chromosome, ठीक है, DNA into chromosome। तो अगर हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स किसी वजह से हम लोग ख़राब कर देते हैं तो our DNA cannot condense into chromosomes, alright। इसके साथ साथ गाइस हमारे पास स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, which is going to be called ovalbumin and casein। casein is a milk source, ठीक है। So this is found in milk and ovalbumin is an egg source, ठीक है, ये egg whites के अंदर होता है स्पेसिफिकली। इसके साथ साथ आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आपके जो ए लेवल्स की नोट्स हैं, जो आपके एफएससी की नोट्स हैं गाइस, प्लीज़ रिवाइज दिस बिकॉज इसमें देयर इज नथिंग न्यू, नथिंग स्पेशल असाइड फ्रॉम दीज थिंग्स, जो कि मैंने जल्दी से रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है। एंड गाइस with this I am going to be wrapping up this video। I know there's nucleic acids left, ठीक है। मैं nucleic acids को खुद भी personally when I'm doing this chapter, when I used to do this chapter, I didn't do them with biological molecules, ठीक है, because I think it makes much more sense if you're doing them when we are studying the cell cycle and biosynthesis, ठीक है, the protein synthesis, वो वाली सारी चीज़ें, because फिर आपको बातें समझ ज़्यादा अच्छी आ रही होती हैं, ठीक है। तो we'll inshallah be doing it in that chapter, and that wraps up this video, ठीक है। I hope this video was interesting and fun and help you guys to revise everything, and that's pretty much it। Thank you so much for watching, and inshallah the next rapid review series is going to be on enzymes। Thank you so much for watching, and Allah Hafiz।